جھنگ میں چینی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری، ضلع انتظامیہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کمر کس لی۔ کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ چینی سستی کیا ہوئی، دکانوں سے ہی غائب ہو گئی۔ گزشتہ روز جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن میں چینی کی قیمت 70 روپے مقرر کی گئی، تاہم شہر میں چینی 78 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ شہری چینی کے حصول کے لیے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ چینی سستی ہو گئی ہے لیکن مل نہیں رہی ہے کہیں سے۔ حکومت کو اس بات پہ نوٹس لینا چاہیے، ہم صبح سے لائن میں کھڑے رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بنیادی ضرورت کے لیے استعمال کی جانے والی چینی شہر بھر کی دکانوں میں قلت کا شکار ہے۔ چینی گورنمنٹ نے سستی کی لیکن جو ہے نا دکاندار اپنی مہنگی دے رہے ہیں، اور جو ہے ڈی سی صاحب اس کا نوٹس لیں اور جو ہے عوام تک یعنی کہ سستی داموں فروخت ہونی چاہیے۔ انتظامیہ کی جانب سے ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کی سہولت کے لیے ایک چینی سیل پوائنٹ قائم کیا جائے، جبکہ شوگر ملز مالکان جلد ہی چینی سپلائی کر دیں۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ چینی کی قلت کے بعد پیٹرول کی بندش کی بات کر لیتے ہیں۔ مکوانا میں موجود مختلف پیٹرول پمپس پر پیٹرول کی فروخت بند کر دی گئی۔ شہریوں کو موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے لیے پیٹرول دستیاب نہیں۔ غیر قانونی طور پر قائم پیٹرول ایجنسیوں کو پیٹرول فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ مکوانا اور جڑاوالا روڈ پر موجود پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول کی فروخت مکمل طور پر بند کر رکھی ہے، مگر یہ بندش صرف عام شہریوں کے لیے ہی ہے۔ شہریوں کو گاڑی یا موٹر سائیکل کے لیے پیٹرول نہیں دیا جاتا، مگر غیر قانونی طور پر قائم پیٹرول ایجنسیز کو پیٹرول پمپس کی جانب سے پیٹرول ابھی بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ ایجنسی مالکان من مرضی کے ریٹ پر پیٹرول فروخت کر رہے ہیں۔ پمپ مالکان یہی کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول نہیں ہے، ایجنسی والے دے رہے ہیں پیٹرول پرانی قیمت پر دے رہے ہیں، وہ اپنی مرضی کا ریٹ لگاتے ہیں، بس اسی طرح پیٹرول دے رہے ہیں۔ پمپ والے کہہ رہے ہیں پیٹرول نہیں ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان اور غیر قانونی پیٹرول ایجنسیز کے مالکان کی ملی بھگت کے باعث پیٹرول کے مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے، مگر انتظامی ادارے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس اور انتظامیہ کی کارکردگی صرف کاغذی کارروائی تک محدود ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان اور غیر قانونی ایجنسی مالکان کے خلاف عملی طور پر کوئی کارروائی دیکھنے میں نہیں آتی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذوالقرنین طاہر، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں پیٹرول کی قلت، کئی پمپس کی جانب سے تاحال فروخت شروع نہ ہو سکی۔ اے سی صدر عمر مقبول کے علاقے میں کارروائی، 15 پیٹرول پمپس کو سیل کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں پیٹرول کا بحران قابو سے باہر ہو گیا۔ حکومت کی لاکھ کوششوں کے باوجود کئی پمپس کی جانب سے تاحال فروخت شروع نہیں ہو سکی۔ اے سی صدر عمر مقبول نے صدر کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے 15 پیٹرول پمپ سیل کر دیے۔ 15 جو ہیں وہ ایسے تھے کہ جو کسی وجہ سے بھی جو فیول نہیں دے رہے تو ان کو سیل کر دیا گیا ہے، تو ان کو جو ہے ہم جو ہے ان کے اوپر لیگل ایکشن بھی کریں گے۔ اے سی صدر کا کہنا تھا کہ تحصیل میں 40 پمپس چیک کیے، پمپس انتظامیہ کی جانب سے پیٹرول فروخت نہ کرنے پر کارروائی کی گئی۔ ڈی سی صاحب کی خصوصی ہدایت تھی کہ جو بھی اسسٹنٹ کمشنر کا ایریا ہے وہاں پہ جو فیول پمپس ہیں ان کی انسپیکشن کی جائے، اور اگر کوئی جو ہے فیول پمپ کسی وجہ سے پیٹرول نہیں دے رہا تو اس کی فوری طور پہ سیل کیا جائے۔ تو اس کو جو ہے ابھی ہم نے تقریباً 40 کے قریب جو تھے پیٹرول پمپس کی انسپیکشن کی ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید کارروائیاں متوقع ہیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ اور پنجاب کے نئے مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جا رہا ہے۔ ترقیاتی بجٹ رواں مالی سال کی نسبت 13 ارب روپے کم مختص کرنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق ترقیاتی بجٹ کی مد میں 337 ارب روپے کے فنڈز مختص کرنے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ذرائع کے مطابق نئے مالی سال میں پنجاب حکومت کی جانب سے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 337 ارب روپے کے فنڈز مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا سے معاشی حالات کی ابتری کے لیے 40 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اسمال ورک کے لیے 30 ارب اور ہنر مند سمیت تربیتی پروگرام کے لیے 8 ارب مختص کرنے کی تجویز ہے۔ پنجاب میں جاری منصوبوں کے لیے 61 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جبکہ پنجاب میں نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 54 ارب روپے، نئے منصوبوں کے لیے بلاک ایلوکیشن کی مد میں 39 ارب، صوبائی محکموں کے لیے بلاک ایلوکیشن کی مد میں 16 ارب مختص کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر ارکان اسمبلی، وزراء اور قومی ارکان اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 23 ارب روپے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی مد میں 25 ارب اور واجب الادا فنڈ کی ادائیگی کے لیے 16 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ پنجاب میں شعبہ تعلیم کے بجٹ میں رواں مالی سال کی نظر ثانی شدہ بجٹ کی نسبت 1 ارب روپے کم مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ شعبہ صحت کے لیے مجموعی طور پر 33 ارب روپے کے فنڈ مختص کرنے کی تجویز۔ روڈ اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں نئے مالی سال کے بجٹ میں 73 روپے، محکمہ آبپاشی کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 17 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ شعبہ صنعت اور تجارت کے لیے 3 ارب، شعبہ زراعت کے لیے 12 ارب روپے، اربن ڈیولپمنٹ کے لیے 17 ارب 60 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ فیصل آباد میں ویمن یونیورسٹی نیو کیمپس کے لیے 1 ارب 26 کروڑ کی گرانٹ منظور کر لی گئی۔
चेयरमैन फाइनेंस कमेटी मेंबर वजीर आजम कोर कमेटी फैजुल्ला कमोका ने 1 अरब 26 करोड़ के मंसूबे के लिए 25 करोड़ हायर एजुकेशन की जानिब से मंजूर करवा लिया। विमेन यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस खुरनेवाला में बनेगा। चेयरमैन फाइनेंस कमेटी और मेंबर वज़ीर आज़म कोर कमेटी फैजुल्ला कमोका की जानिब से सिफारिश की गई थी। फैजुल्ला कमोका कहते हैं कि आवाम से किया गया वादा पूरा किया है। हल्के और फैसलाबाद की वाहिद विमेन यूनिवर्सिटी के लिए कामयाबी हासिल की। बाकी मंसूबों की रकम भी अगले माली साल में लेकर मंसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। और फैसलाबाद में काश्तकार जहां टिड्डी दल से परेशान है, वहीं सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी भी हमलों के लिए पर तोल रही है। ज़राई माहिरीन ने हशरात से बचाने का फार्मूला भी बता दिया है। फैसलाबाद अभी तक टिड्डी दल के हमलों से बचा हुआ है, मगर खतरात बहरहाल मौजूद हैं। एक राय के मुताबिक टिड्डी दल 3 साल तक मुतवत्तर हमले करने के बाद ही तल्फ होगी। अयूब रिसर्च हुकाम की जानिब से टिड्डी दल से बचाव के लिए काविशों का सिलसिला जारी है। मशरकी अफ्रीका से स्टार्ट हुई थी, ये सऊदी अरब और ईरान के रास्ते से इसने बलूचिस्तान और फिर बहरा अरब को पार करके हमारे सिंध में दाखिल हुई थी। तो काफ़ी लकीली जो हमारी रबी की फसल थी उस पे तो अल्लाह पाक ने करम किया, उस पे हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ज़राई माहिरीन का मानना है कि टिड्डी दल के साथ गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी भी कपास की फसल के लिए खतरा हैं, जिससे बचाव के लिए जहर मिला बीज इस्तेमाल करके काश्तकार फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बीजों को जहर मिलाया जाए तो 2 माह तक कोई भी सुंडी हमला नहीं कर सकती। अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड को टेस्ट किया है और एक स्प्रे स्केड्यूल बनाया है। अगर उस स्केड्यूल के ऊपर हमारे ज़िम्मेदार भाई अमल करें तो डेफिनेटली बड़े अच्छे तरीके से हम इन दोनों कीड़ों को, मूजी कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। फसलों की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए किसान ज़राई माहिरीन के साथ मुशावरत करें तो बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। अनार की फसल पककर मार्केट आने के लिए तैयार हो गई। अयूब रिसर्च फैसलाबाद में खुश जायका और खूबसूरत अनार तैयार कर लिया गया। काश्तकार मुशावरत करके अच्छे अनार का पौधा लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। अयूब रिसर्च फैसलाबाद में खुश जायका और खूबसूरत अनार तैयार कर लिया गया है। ज़राई माहिरीन का मानना है कि अनार खाने से क़ुव्वत मदाफ़त और खून की रवानी बेहतर होती है। पाकिस्तान में अगर इसकी बात करें तो ये तहसील लियाकतपुर और अलीपुर और मुजफ्फरगढ़ के एरिए में ये ज़्यादा पाया जाता है और काफ़ी बागात हैं उस एरिए में। जैसे हमारे इधर फैसलाबाद शेखपुरा इस एरिए में अमरूद के बागात है, वहाँ पे अनार के बागात हैं। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है, अब लोग इस एरिए में भी लगा रहे हैं। डॉक्टर जाहिद का कहना है कि अनार की मुख्तलिफ इकसाम अयूब रिसर्च में काश्त की गई हैं। अनार एक ऐसा पौधा है जो ज़्यादा जगह नहीं घेरता, जबकि ये फल अच्छा खासा महंगा फरोख्त होता है। डॉक्टर भी अनार का फल खाने की तजवीज़ देते हैं। अनार जो है अब कोविड इशू का चल रहा है, ये कोविड-19 का जो इशू चल रहा है, कोरोना का स्पेशली, तो उसके हवाले से अनार जो है ये मैं समझता हूँ कि लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इसको खाएँ, क्योंकि डॉक्टर्स आज जो है वो अक्सर इसको रिकमेंड करते हैं कि जिन लोगों को ब्लड की कमी हो जाती है तो वो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके लिए ये काफ़ी इफेक्टिव है। अयूब रिसर्च के साइंसदानों का कहना है कि काश्तकारों को अपने खेतों की गंडियों पर फलदार दरख्त काश्त करने चाहिए ताकि इन्हें हर बरस माली फ़ायदा हासिल होता रहे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। अहमदपुर सियाल में पुलिस थाना गढ़ महाराजा की SHO और राना उमर दराज की सरबराही में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए चर्च शराब फरोशी में मुलविस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बात करेंगे अम्मार यासिर से। अम्मार, बताइएगा। पुलिस थाना गढ़ महाराजा की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। DPO जंग सरदार गयास पोल और SHO थाना गढ़ महाराजा उमर दराज खान की सरबराही में जो है ASI रमज़ान नवीद और ASI सजाद अख्तर ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 60 लीटर शराब जबकि 1 किलो से ज़ायद जो है चर्स बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज के उन्हें हवालात मुंतकिल कर दिया गया। इस वाले से अगर देखा जाए तो 4 अफराद जो गिरफ्तार होने वाले उनमें जो है साजिद महबूब, फ़खर अब्बास, गुलाम शबीर और सफ्तर हुसैन जो है ये शामिल हैं और अरसदराज से जो है मंशियात फरोशी में जो है मुलवस थे, जिनकी जो है मुखबर की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इन 4 अफराद को गिरफ्तार किया। इस हवाले से SHO थाना गढ़ महाराजा उमर दराज खान का कहना था कि इसी तरह जो है मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखेंगे। अगर आपके इलाके में शहरियों को भी उन्होंने अपील किया कि अगर आपके इलाके में जो है कहीं भी कोई मंशियात फरोशी करता हुआ नजर आता है तो फौरी तौर पर पुलिस थाना गढ़ महाराजा को इतला दें ताकि ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया जा सके जो इलाके में जो है मंशियात जैसी लानत जो है वो फरोश करते हुए नजर आ रहे हैं और नौजवान नस्ल को जो है तबाही के दहाने पर पहुँचा रहे हैं। नौजवान नस्ल को तबाही के दहाने पर पहुँचा रहे हैं। ठीक है अम्मार, आपने हमें अपडेट किया।
फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 228 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा मरीजों की तादाद 3558 हो गई है, जबकि 6 डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार हो गए हैं। मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 270 हो गई है। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमलों में तेजी आ गई। 24 घंटों के दौरान 228 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 3558 तक जा पहुंची। मुतासरीन में बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी शहरी अस्पतालों में जेर इलाज अफराद और मेडिकल अमला शामिल है। ताहम 24 घंटों के दौरान 6 डॉक्टर भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। ताहम जिला भर में मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 270 हो गई है। मुतासरा में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स शामिल हैं। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से शहरियों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हदायत की गई है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। कमालिया में नवाही इलाका 54/1 से ताल्लुक रखने वाली खातून कोरोना वायरस में मुब्तला होकर जाँ बहक हो गई। खातून चंद दिनों से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जेर इलाज थी। कोरोना वायरस के पेश नज़र जाँ बहक होने वाली खातून को SOPs पर अमल दरामद करते हुए नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि कमालिया से ताल्लुक था इस खातून का, जो कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते अब जाँ बहक हो चुकी है। DHQ अस्पताल में ये जेर इलाज थी और कोरोना वायरस को शिकस्त देना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका और अब जो है वो फौत हो गई है, जाँ बहक हो चुकी है। उसकी नमाज जनाजा जो है वो SOPs के तहत अदा की गई है और अब उसको सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है। हुकूमत का कोरोना मरीजों के लिए एहसन इकदाम। 72 एक्टेमरा इंजेक्शन फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस कर दिए। ये रिपोर्ट देखें। हुकूमत की जानिब से एक्टेमरा इंजेक्शन की ओपन मार्केट में फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई थी। ताहम इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फराहमी से मुतल्लिक हिदायत जारी की गई थी। हुकूमत की जानिब से बेहतर इंजेक्शन फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। एक्टेमरा इंजेक्शन फराहमी से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एक्टेमरा इंजेक्शन एलाइड DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में जेर इलाज कोरोना वायरस मरीजों के लिए इस्तेमाल में आ सकेगा। 18 मरीजों के लिए बेहतर इंजेक्शन फराहम किए गए हैं। इंजेक्शन के इस्तेमाल से कबल मरीजों की रिपोर्ट्स और वीडियो हुकूमत को भिजवाना लाजमी होगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में कोरोना की कसीर तादाद भी कोरोना का शिकार हो गई। एमरजेंसी और गायनी वार्ड में सहूलियात का फुकदान बचा करार। अस्पताल के दरवाजे पर कोरोना से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। तोबा टेक्सिंग में फ्रंट लाइन पर सोल्जर की बड़ी तादाद कोरोना वायरस से मुतासर होने लगी। महकमा सेहत की नाकस हिकमत अमली के बायस डॉक्टरों को किट्स फराहम नहीं की गई। DHQ अस्पताल समेत जिला भर में हेल्थ के 22 अफराद कोरोना का शिकार हो गए, जिनमें 19 डॉक्टर, 3 वार्डन जबकि 1 नर्स भी शामिल है। गायनी वार्ड की सीनियर डॉक्टर तैयबा रसूल भी कोरोना का शिकार हो गई। इसके अलावा इमरजेंसी में काम करने वाले डॉक्टर्स की भी बड़ी तादाद वायरस से मुतासर हुई है। शहरियों का कहना है कि फ्रंट लाइन पर काम करने वाले ही अगर महफूज नहीं तो अवाम कैसे महफूज रहेगी। हुकूमत फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर कोरोना से बचाव के बारे में इकदाम करें ताकि फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सोल्जर अपने आप को महफूज रख सकें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। रिफा यूनिवर्सिटी और सफ़ी अस्पताल के इश्तराक से कोविड-19 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन कायम। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन रिफा यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुदस्सिर अहमद ने खुसूसी शिरकत की। शहरी कोरोना वायरस से पैदा होने वाले नफ्सियाती मसाइल से मुतल्लिक फोन कॉल पर माहिरीन से मुफ्त मशवरे हासिल कर सकेंगे। कोरोना की बीमारी के साथ साथ इसका खौफ भी खतरनाक साबित हो रहा है, जो शहरियों को डिप्रेशन समेत कई नफ्सियाती बीमारियों का शिकार कर रहा है। ऐसे में रिफा यूनिवर्सिटी और सफ़ी अस्पताल के इश्तराक से कोविड-19 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन कायम कर दी गई है, जिसका इफ्तिताह डॉक्टर मुदस्सिर अहमद ने किया। हमारी पूरी टीम ऑनलाइन हर वक्त मौजूद रहेगी। उसका टेलीफोन हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे कि वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें, खुद मरीज़ या उसके लवाहिकीन वो फ़ोन करके जो हमारे यहाँ PhD असातिज़ा हैं उनसे वो कंसल्ट करेंगे। MS सफ़ी अस्पताल डॉक्टर आसिफ भट्ट और इंचार्ज हेल्पलाइन डॉक्टर विजरा सईद का कहना था कि शहरी कोरोना वायरस से पैदा होने वाले नफ्सियाती मसाइल से मुतल्लिक फ़ोन कॉल पर माहिरीन से मुफ्त मशवरा हासिल कर सकेंगे। लोगों की जो मेंटल हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव किया जाए, और दूसरा ये है कि सफ़ी हॉस्पिटल 1 साल से ट्रस्ट बुनियादों पे काम कर रहा है। अगर तो ऑनलाइन उसको ठीक होने का चांसेस है कि वो रिकवर कर जाएगा तो हम ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर क्लाइंट चाहेगा, पेशेंट चाहेगा कि उसे इन पर्सन सर्विसेज भी चाहिए तो हमारे हॉस्पिटल में SOPs को फॉलो करते हुए हम उसको यहाँ पे भी बुला सकते हैं ताकि हम उसका अच्छे से इलाज कर सकें।
ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ لوگ کورونا سے متعلق افواہوں پر کان دھرنے کی بجائے اپنی سماجی زندگی میں مصروف رہیں تو نفسیاتی بیماریوں سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ ان کی قوت مدافعت بھی بہتر رہے گی۔ ہم یہی کہیں گے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے حساب کو جو ہے مضبوط رکھیں، اتنی پریشر میں آنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو جان لیوا ہے۔ آج کل کے سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے جو ان سے کاؤنسلنگ سیشن وہاں پہ آن لائن دے رہے ہیں سائیکولوجسٹ، اس کو اویل کریں، ان کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ بہت سے پہلے کے جو ان سے ریکارڈڈ ہیں وہ لوگ دیکھیں، گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کریں۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر شہباز، سدرا بطول، روشان عصمت، عقیلہ راؤ، زارا خان، زنیرہ منیر، عائشہ ڈھلوں اور شعبہ نفسیات کی طالبات بھی موجود تھیں۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ فیصل آباد ڈویژن بھر سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد، تمام چھوٹے بازار بند، حکومتی SOPs کے مطابق اجازت ملنے والی دکانیں کھلی رہیں گی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ حکومتی فیصلے کے مطابق فیصل آباد شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں بند ہیں۔ تاجروں کی جانب سے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ سوموار سے دوبارہ تمام کاروبار SOPs کے تحت کھولے جائیں گے۔ صوبہ انتظامیہ ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرنے کے لیے متحرک ہے۔ شہر بھر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں بند ہیں، جبکہ بازار میں کھلی دکانوں کو فوری طور پر بند کرا دیا گیا۔ انتظامیہ نے کہا کہ صرف وہی دکانیں کھلی ہیں جن کی حکومت نے اجازت دی ہوئی ہے۔ چنیوٹ میں بھی مکمل لاک ڈاؤن رہا۔ شہر کے تمام بڑے بازار، مین فرنیچر مارکیٹ، کچہری بازار، چاراہے قائد اعظم، مسلم بازار، گڑھا محلہ اور موبائل مارکیٹ سمیت دیگر اندرون شہر کے بازار بند رہے۔ اور لالیہ میں بھی کچھ دکانداروں کی جانب سے حکومتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری رہی۔ شہر میں کپڑا، کاسمیٹکس اور اسکریپ کی کچھ دکانیں ہفتے کے روز بھی کھلی رہیں۔ خلاف ورزی کرنے والے 5 دکانداروں کی دکانوں کو انتظامیہ نے سیل کر دیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی فیصل آباد کا اجلاس ہوا اور اراکین اسمبلی کو ترقیاتی اسکیموں اور کورونا وائرس کے حوالے سے بریف کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ کمشنر نے بتایا کہ فیصل آباد میں اب تک 43 فلائٹس کے ذریعے 5992 مسافر آئے، 4 کوارنٹائن سینٹر کے 862 کمروں میں ہر ممکن اقدامات کیے گئے اور 301 زائرین، 69 تبلیغی جماعت کے افراد اور مسافروں کے لیے 3 وقت کا کھانا اور دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ فیصل آباد کے 13,344 افراد کے کرونا ٹیسٹ ہوئے، 9,158 نیگیٹو، 2,752 پازیٹیو، 500 سے زائد صحت یاب اور 86 اموات ہوئی۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 48 فیکٹریاں سیل کی گئیں۔ چینی اور آٹا مہنگے داموں فروخت کرنے والوں کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اراکین اسمبلی کو بتایا گیا کہ جاری ترقیاتی اسکیموں کا 69% تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ اراکین اسمبلی نے انسداد کرونا اقدامات میں ضلعی انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ اجلاس میں اراکین اسمبلی شیخ خرم شہزاد، ملک عمر فاروق، چودھری لطیف نظر، میاں خیال کاسرو، عادل پرویز گجر، فردوس رائے اور دیگر اراکین اسمبلی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ یہ سے منظور شدہ کالونیوں کے پبلک مقامات ڈیولپرز کے قبضے میں، 118 کالونیاں منظور شدہ مگر صرف 15 کالونیاں پبلک مقامات کا قبضہ لیا جا سکا۔ FDA سے منظوری کے بعد کالونی کے پارکس، ہسپتال، سکول، گلیوں اور بازاروں کی ملکیت FDA کے نام منتقل ہوتی ہے۔ تاحال 118 نجی کالونیوں کی منظوری ہو چکی مگر صرف 15 کالونیوں سے پبلک مقامات کا قبضہ لیا جا سکا۔ FDA کے سابق افیسرز کی ناقص حکمت عملی کے باعث FDA کے سائٹس کا قبضہ نہیں لیا جا سکا۔ تاہم موجودہ DG محمد سہیل خواجہ نے کالونیوں کی پبلک سائٹس کا قبضہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اسٹیٹ لینڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہم بالکل الاؤ نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے پبلک یوٹیلیٹی سائٹس کو سیل پرچیز یا چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کے کچھ حصے کو انکروچ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے خلاف ہم بھرپور کارروائی کر رہے ہیں، FIRs لانچ کروا رہے ہیں، ڈیمولش کر رہے ہیں اور پوزیشن ٹیک اوور کر رہے ہیں۔ DG FDA محمد سہیل خواجہ کے مطابق آنے والے دنوں میں باقی کالونیوں میں بھی پبلک مقامات کا قبضہ لیا جائے گا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ پراپرٹی سے وابستہ افراد کے لیے اچھی خبر ہے، فیصل آباد میں کنسٹرکشن آرڈیننس نافذ ہو گیا ہے۔ ٹیکس میں کمی کے باعث رجسٹری فیس میں بھی کمی آ گئی۔ واضح رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ذاتی دلچسپی لے کر تعمیرات کے متعلق آرڈیننس منظور کروایا تھا، جس کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ تعمیرات سے وابستہ افراد نے اسے خوش آئند قرار دیا ہے۔ 1% کارپوریشن کی فیس ہے اور 1% فائلر کے لیے CVT ہے اور 2% نان فائلر کے لیے CVT ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی نان فائلر ایک گھر 5 مرلے کا لیتا ہے تو اسے 4.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ایک رجسٹری کی مد میں ادا کرنا پڑے گا۔ ایک طرف اسٹامپ ڈیوٹی 5 سے 1% آ گئی اور CVT میں بھی کمی کی گئی، مگر ساتھ میں FBR ریٹ اور مارکیٹ ریٹ کی کنفیوژن ختم کرنے کی درخواست بھی کی جا رہی ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں ڈیولپرز، وہ یہ ہے کہ آپ
स्टेट वे 1% इसके ऊपर जो है ना वो तमाम ड्यूटीज, स्टाम्प ड्यूटी, कारपोरेशन और CBT लगाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब 1 करोड़ की रजिस्ट्री 1 लाख में होगी। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि महकमों को तावन करने की हदायत की जाए ताकि इस शोबे में भी बेहतरी आ सके। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। इलामा इकबाल कॉलोनी में सीवरेज मसाइल सर उठाने लगे। शहरी सीवरेज सिस्टम खराब होने से अजियत में मुब्तला है। मुतअद्दिद बार वासा को दरख्वास्त दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यह है इलामा इकबाल कॉलोनी, जहां का सीवरेज सिस्टम पिछले 2 साल से नकारा हो गया। सीवरेज निजाम खराब होने से शहरी अजियत में मुब्तला होने। शहरियों का कहना है घरों में बच्चे बीमार पड़ने लगे। फौतगी हो जाए तो जनाजा सीवरेज वाले पानी से लेकर गुजरना पड़ता है। कई बार वासा हुकाम और इस इलाके के MNA को मसाइल बारे आगाह किया। एक छोटी सी गली है, ये नहीं बन सकी, इनसे और क्या होना है। अब ये तकरीबन यहाँ पे 65 से लेकर 70 घर हैं, वो इस गली की वजह से परेशान हैं। तमाम लोग ये गंदा पानी आप देख चुके हैं और ये रोज़ ही यही मसला होता है। जब शादी होती है या फौतगी होती है, लोग घरों तक ही महदूद होते हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते। हमने फ़र्क भी को वोट दिया और जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि आपकी मुश्किलात को हम आसान करेंगे, लेकिन 2 साल हो गए हैं, गली का गंदगी रहती है तो जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में मुश्किलात हो रही है। इलामा इकबाल कॉलोनी के रहायशियों का कहना था एक तरफ कोरोना बीमारी और दूसरी तरफ गंदे पानी से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। थोड़ा सा पानी हो तो बोलते हैं ये पानी साफ करें, इधर रखना नहीं है पानी। तो आप देखें ये गली में कितना ज़्यादा पानी खड़ा है, तो डेंगू है इधर। सारे लोग, हमारे घर में सबको बुखार चढ़ गया, यानी कि खांसी है, नज़ला है। इस गली में सबको यानी कि ऐसे ही तबीयत यानी कि ख़राब हो चुकी है। कोरोना से मरे न मरे, इस पानी की वजह से मर जाएंगे सबको। हम वहाँ जाते हैं जी, वहाँ हमारी बात नहीं सुनते जी। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, भाई बीमार हैं, हम बहुत टेंशन में मसरूफ़ हैं। DG FDA ख्वाजा सुहेल का कहना था टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जल्द ही मसाइल को हल किया जाएगा। इस हवाले से हमने टीमें तश्कील दे दी हैं और MD वासा को, DMD सर्विसेज को ये डायरेक्शन दे दी गई है और वो इसके ऊपर लाए अमल के मुताबिक इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और जल्दी इस पर सॉर्ट आउट कर लेंगे। शहरियों ने वासा हुकाम से सीवरेज मसाइल जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। चिन्योट से खबर शामिल करेंगे, जहां BHU चक 126 की 10 रोज से बिजली बंद है। ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस इमरजेंसी केसेस में BHU स्टाफ और डॉक्टर समेत मरीज सख्त गर्मी में शदीद परेशान है। ये रिपोर्ट देखें। जुमरा रोड पर वाक़िया बेसिक हेल्थ यूनिट चक 126 में 10 रोज से बिजली बंद। स्टाफ के मुताबिक ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं हो सके, जिसके बायस इमरजेंसी केसेस में BHU स्टाफ और डॉक्टर्स को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीज और लवाहिकीन गर्मी की शिद्दत से मुश्किलात का शिकार हैं। ट्रांसफार्म बेसिक सिर्फ और सिर्फ जो है ना BHU का खराब है और वहाँ का जो अमला है वो भी एक तो बदतमीजी के साथ, जो भी अगर कोई साइल आता है ना तो वो भी जो है ना पता नहीं बिजली की बंदिश की वजह से वो बिजली वालों का गुस्सा जो है ना साइलिन पर निकालता है। और किसी जो है ना जो भी इलाका है मकीन है वो इस सूरत हाल से इतने नाचार और इतने परेशान हाल हैं कि जिसका जो है ना मैं आपको जो है ना बयान नहीं कर सकता। एक्शन फेस्ट को मुरीद अब्बास का कहना था कि ट्रांसफार्मर सिर्फ BHU के लिए मुख्तिस है। जो ही डिमांड नोटिस जमा करा जाएगा बिजली बहाल कर दी जाएगी। 10 रोज से BHU चक 126 पर बंद बिजली ने महकमे सेहत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। एपका मुलाजमीन मुतालबात के हसूल के लिए डट गए। मुलाजमीन ने तहसील काउंसिल सदर दफ्तर को ताले लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के मुताबिक एपका तहसील कौंसल सदर मुलाजमीन मुतालबात के हसूल के लिए मैदान में आ गए। मुलाजमीन ने तहसील कौंसल सदर दफ्तर को ताले लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुलाजमीन ने बजट में तनख्वाह ना बढ़ने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। एहतजाजी मुलाजमीन का मौक़िफ़ था कि जब तक अलाउंसेस नहीं बढ़ते एहतजाज जारी रहेगा। कल नहायत अफसोस हुआ जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि काबीना ने यह फैसला किया है कि हम तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे। इसलिए हम जो अभी मेरे साथी ने चार्टर ऑफ डिमांड के बारे में तफसीली बताया है, फिर मुतालबा करते हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशनों में इजाफा किया जाए ताकि लोग अपनी ज़िंदगी आप जी सकें। तहसील कौंसिल सदर में यूनियन रहनुमा मोहम्मद खान कल्लू की सरबराही में एहतजाज किया गया। इनका कहना था कि तनख्वाहें लाजमी बढ़नी चाहिए, इस तरह अलाउंसेस में भी इजाफा नागजीर है। महंगाई की बढ़ती शरह में रिलीफ मुलाजमीन का हक है। एहतजाज आज हमारा पहला दिन है। तालेबंदी हमने दफ्तर की गई है। अभी ये एहतजाज मकामी लेवल पे है, ये सूबाई लेवल और कौमी लेवल पे जाएगा। गवर्नमेंट ने, हम कोरोना के लिए वर्क कर रहे हैं, दिन रात एक किया हुआ है हमने काम करने में,
लेकिन हमें अजाफी तो क्या देना, हमारी जो तनख्वाह उसमें भी इजाफा नहीं किया। ऐपका मुलाजमीन का कहना था कि मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि वफाक की जानिब से हायर एजुकेशन के बजट को कम करने पर झंग के प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की ज़िलाई बॉडी की शदीद मजम्मत। एसोसिएशन की जानिब से मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस खान। झंग में वफाक के बजट पर तालीमी हलकों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की ज़िले बॉडी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वफाक की जानिब से हायर एजुकेशन के बजट कम करने की शदीद मजम्मत की गई, जबकि एसोसिएशन की जानिब से मुश्तरका एलानिया भी जारी कर दिया गया। आसिफ अली शाहिद का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत हायर एजुकेशन के लिए बजट नज़्म कर दिया गया है। बजट में कमी से तालीमी म्यार शदीद मुतासिर होगा। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत बजट तजावीज़ पर नजर सानी करते हुए हायर एजुकेशन के लिए बड़े पैमाने पर बजट मुख्तिस करे ताकि तलबा का म्यार तालीम बुलंद हो सके। हुकूमत को अपने बजट को रिवाइज करते हुए बजट तालीम के लिए बहुत ज़्यादा मुख्तस करना चाहिए ताकि रिसर्च हो। जिस मुल्क में तालीम ही नहीं होगी उस रिसर्च ही नहीं होगी, रिसर्च नहीं होगी तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी, तो फिर यही असर होगा। कॉलेज मालिकान और तालीमी माहिरीन की जानिब से मुतालबा किया गया कि हुकूमत तलबा को बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए खसूसी स्कॉलरशिप भी जारी करे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 छन। के रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डिवीजन रिफत मुख्तार राजा ने समुंदरी का दौरा किया। आरपीओ ने थाना तरखानी में एसपी, डीएसपी और एसएचओ से मीटिंग भी की। आरपीओ ने राना अशरफ और डीएसपी नासिर नवाज और एसएचओ मियां असगर से ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग की। मियां असगर ने थाना तरखानी का रिकॉर्ड चेक करवाया और ब्रीफिंग दी। आरपीओ ने एसएचओ को कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। डीपीओ टोबर टेक्सिंग वकार कुरैशी ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस पुलिस मुलाजमीन को एसओपीज पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। कहते हैं अलामात जाहिर होने पर फौरी तौर पर टेस्ट करवाना चाहिए। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की हिदायत पर डीपीओ टोबा वकार कुरैशी के ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के लिए कोरोना वायरस और स्पेशल ड्यूटी से मुतालिक लेक्चर का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला भर से अफसरान और पुलिस मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौका पर डीएसपी हेडक्वार्टर टोबा बहार हुसैन भट्टी, लाइन ऑफिसर अता मोहम्मद एसआई और पीआरओ मोहम्मद अताउल्लाह भी मौजूद थे। दौरान लेक्चर डीपीओ टोबा वकार कुरैशी ने कोरोना वायरस के अलामात और इससे बचाव के हिफाजती तदाबीर बारे आगाह किया। अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए तो परेशान होने की बात नहीं है, एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं और ठीक हो जाएंगे। जवान बंदे को, सेहतमंद बंदे को, इवन 50-55 साल के भी बंदे को जो सेहतमंद है या 60 साल का बंदा जो सेहतमंद है, उसको अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया है तो उसको हमारे लिए परेशानी की बात ये होती है कि ये इससे किसी उस बंदे को मुंतकिल, इस सेहतमंद बंदे से किसी उस बंदे को मुंतकिल ना हो जाए जो पहले से बीमार है और वो परेशान हो जाए। दौरान ड्यूटी हाथ मिलाने और गले मिलने से परहेज करें और आपस में बातचीत करते वक्त मुनासिब फासला जरूर इख्तियार करें। इसके साथ साथ सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल करें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कबड्डी की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड्स और खेलों की तरबियती कैंपों एसओपीज के हवाले से बातचीत की गई। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कबड्डी की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें एसओपीज और ग्राउंड के हवाले से बातचीत की गई। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान का कहना था कि कबड्डी फेडरेशन की तजावीज़ पर हुकूमत से बात की जाएगी। स्पोर्ट्स स्टेडियम जो कबड्डी का है उसके हवाले से 2 वेन्यू जो है इन्होंने सजेस्ट किए हैं, तो उसके लिए काम करेंगे। वेलफेयर फंड के बारे में बात हुई है, इवेंट्स के बारे में बात हुई है, तो इंशाल्लाह ताला अब मैंने यही कहा है कि चैम्बर चूँकि इनका अपना अदारा है। इंटरनेशनल कमेंटेटर तैयब गिलानी का कहना था कि एसओपीज का ख्याल रखते हुए कबड्डी के खिलाड़ियों को मैदान में लाएंगे। कोरोना वायरस के ख़त्म होते ही इंटरनेशनल लेवल का कबड्डी टूर्नामेंट भी करवाया जाएगा। जून के लास्ट में टेक्निकल रेफरी एंड कोचिंग कोर्स भी करवा रहे हैं खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की तरबियत के लिए, और इंशाल्लाह जो ही ये कोरोना वायरस की क्लियरेंस होती है फैसलाबाद में बहुत बड़ा इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट भी होगा। खिलाड़ियों और कोचेज ने कबड्डी के अमूर पर इजलास के लिए चैम्बर से जगह का भी मुतालबा किया, जिस पर सदर चैम्बर ने फौरी तौर पर कबड्डी के लिए चैम्बर का हाल देने की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।